الحمد لله الذي زين النبي بالحبيب المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم. سب سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء محبوب الانبیاء سید المرسلین صحابہ یاسین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع الذنوبین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہیں تیرا نشیمن فخر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن فخر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمدردان قوم ملت، نوجوانان اہل سنت، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وہ جانے بات کی توجہ کو مبذول کرنے سے قبل ایک دو باتیں کم تمہیدی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے الاخلاء، گہرے دوست. آج ہم جس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں پر ہم سانس لے رہے ہیں، وہاں قدم قدم پر برائیاں ہیں. یہ پرفتن دور ہے. جن باتوں کو مایوس سمجھا جا رہا تھا، آج ان باتوں کو حسین انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جن کاموں کو انسان مجبوراً بھی نہیں کرتا تھا، اس دور نے اس کام کو انسان کو مسروراً کرنے پر مجبور کر دیا ہے. جس کام کو ہم خوشی سے سر انجام نہیں دیتے تھے، آج ہم اسی کام کو
तहजीब से सर अंजाम दे रहे हैं। गोया इंसान बुराइयों की तरफ लपकता चला जा रहा है। जिन मनाजिर को इंसान अपने आंखों से देखना गवारा नहीं करता था, आज वही इंसान उन मनाजिर को अपनी माँ और बहनों और भाई और बहनों के सामने उन मनाजिर को देखता है। तो ये बहुत फतन दौर है। इसलिए मैं कहूंगा बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। और जब डगर पनघट की डगर जब इस कदर कठिन हो, जहां चलना मुश्किल हो, जहां पर पांव फिसल रहे हो, जहां पर आप कदम को जमा न सकते हो, फिर वहां से इस बात की उम्मीद करना कि हम सही सलामत अपनी मटकी को वहां से भर के लाएंगे, तो मुझे ये बात कहने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसे हजरत आमिर खुसरू फरमाते हैं कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। इस वक्त ये दौर, ये जमाना बहुत पुरअसर और पुरकठिन दौर है। यहाँ पर अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन कुरान हमसे एक हकीकत का इजहार करना चाहता है, और एक ऐसी बात जो हमारे ऊपर अभी तक पोशीदा थी उसे कुरान अया करना चाहता है, एक हकीकत का इजहार करना चाहता है। कुरान एक सच्ची हकीकत को तुम्हारे सामने रखना चाहता है। वो ये है कि आखिर लाओ तुम्हारे गहरे दोस्त, जिस दोस्ती पर तुम्हें आज बड़ा नाज है, जिनकी संगत को तुमने अपनाया हुआ है, जिनके सहारे तुम चल रहे हो, जिस यारानी पर तुम बड़े इतरा रहे हो, जिस दोस्तानी ताल्लुकात पर तुम बड़े फख्र करते हो, कुरान का तुमसे चैलेंज है। कुरान तुम्हारी इस हकीकत को खोलना चाहता है। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त उस रोज आपस में दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी के। सिवाय मुत्तकी के कहने का मकसद क्या है कुरान का? कुरान तुम्हें ये जहन दे रहा है, ये तुम्हें बता रहा है, तुम्हारी हकीकत को खोल रहा है, तुम्हारी आंखों को खोल रहा है कि आज तुम जिस दोस्ती पर नाच कर रहे हो, जिस दोस्ती पर तुम फख्र कर रहे हो, जिस याराने की तुम तराने गाते हो, दोस्तों वो दोस्ती तुम्हें कल कयामत में काम न आएगी। वो दोस्ती तुम्हें कयामत में काम न आएगी। आज तुम अपने एक दोस्त के लिए अपनी जान का हथिया भी निछावर कर दो, तुम उसके लिए अपनी माल और मता को भी निछावर कर दो। इंसान बहुत सी मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम हो चुका है, बहुत सी जमातों में तकसीम हो चुका है। एक इंसान इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, किसी ने मशरिक का रुख किया है, किसी ने मगरिब का रुख किया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दोस्तों बड़ी मुख्तलिफ जमातें हैं, मगर इंसान ये नहीं जानता कि हम जिसके साथ वाबिस्ता हो रहे हैं, हम जिसके साथ अहदो पैमान कर रहे हैं, क्या हमारा यह अहदो पैमान हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा? नहीं दोस्तों, हमारा अहदो पैमान तो अपने अल्लाह और अपने रसूल के साथ है। हमारा पैमान, हमारी रस्सी, हमारे हाथों में जो रस्सी है वो रब तबारक व तआला की दी हुई रस्सी है, और उसी रस्सी को हमें मजबूती से थामना है। आज इंसान दोस्तों अपने दोस्त की दोस्ती के अंदर इस कदर मशगूल हो चुका है, और उसके याराने इतने गा रहा है जिसके पादाश में और अल्लाह के रसूल की दास्तानों को फरामोश कर चुका है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ किस तरह दोस्ती करनी चाहिए। आज हम अपने वफाएं जमातों के साथ करते हैं, हमारी तमाम तर वफाएं फला जमात के साथ है, हमारी तमाम तर उम्मीदें इस जमात के साथ वाबिस्ता है। अगर हम इस जमात से वाबिस्ता हो गए तो हम दुनिया में कामयाब व कामरान हो गए। हर इंसान अपना मुफाद देखना चाहता है, और हर इंसान अपने फवाइद को सामने रखता है, अपने अगराज को सामने रखता है, अपने मकासिद को सामने रखता है। वो ये चाहता है कि मुझे इससे दुनियावी गर्ज क्या है, मुझे इससे क्या हासिल हो सकता है। मैं अगर इस जमात से वाबिस्ता हो जाऊं तो मैं दुनिया में माल हो जाऊंगा, मैं शोहरत याफ्ता हो जाऊंगा, मुझे कोई चीज अजियत नहीं पहुंचाएगी, बड़े से बड़ा मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इसलिए दोस्तों हमने अपनी तमाम तर वफाएं ऐसी जमातों के साथ वाबिस्ता कर रखी है, लेकिन दोस्तों ये जमातों के साथ तुम्हारी ये वफाएं तुम्हें काम नहीं आएंगी। यही वफाएं तुम्हारे लिए कल जफा बन जाएगी। जिस दोस्ती पर तुम नाज कर रहे हो, जिनके साथ तुम आज साथ कदम चल रहे हो, कल तुम्हें यही कहेंगे कि आप हमारे गहरे दोस्त नहीं हो, आज हम दुश्मन है, आपस में दुश्मन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात रब्बे कायनात कह रहा है। अल्लाह गहरे दोस्त,
गहरे दोस्त उस रोज का मतलब क़यामत के दिन आपस में दुश्मन होंगे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखेंगे, वो उससे भागता हुआ नजर आएगा, वो उससे भागता हुआ नजर आएगा। क़यामत का एक मंजर तो ये भी फरमाया है, जो कुरान ने कहा है उस दिन दोस्तों हर इंसान एक दूसरे से भागता हुआ नजर आएगा। अगर शौहर होगा तो वो भी बीवी से भागता हुआ नजर आएगा, बाप होगा तो बेटे से भागता हुआ नजर आएगा। उस वक्त किसी को परवाह नहीं होगी, वो तो क़यामत की बात है। मगर अल्लाह तबारक तआला ने इस हकीकत को रोशन कर दिया है, जाहिर कर दिया है कि तुम्हारी दोस्ती, और इसलिए मैं आपको ये ज़हन देना चाहता हूँ, हमारी दोस्ती और ताल्लुक दुनिया से नहीं, दुनियावी मकासद से नहीं, दुनियावी गर्दो-गायत से नहीं, दुनियावी फवाइद के लिए नहीं। अगर हम किसी से दोस्ती करेंगे तो हमें इस हदीस के तहत करेंगे, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो, दुश्मनी किसी से करो तो अल्लाह के लिए करो। अगर तुम किसी से ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसकी बुनियाद यह है कि तुम रब्बे कायनात को दरमियान में रखो। अगर तो हमारे तमाम ताल्लुकात रब्बे कायनात से वाबस्ता है, उसके रसूल से वाबस्ता है, और अगर उसको छोड़कर हम दुनिया के लोगों को अपनाएंगे जिनकी दोस्ती पर आज हम नाज कर रहे हैं, दोस्तों ये कल हमें काम नहीं आएंगे। इसलिए इससे पहले कि जब ये हमें साथ छोड़ दें, क्यों हम ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ अपना रिश्ता गहरा कर लें, क्यों ना कर लें, और मुत्तकियों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि हर आदमी, हर गहरा दोस्त एक दूसरे का दुश्मन होगा, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने एक चीज और भी रखी है, वजूद इसके कि जो मुत्तकी है, परहेजगार है, जो साहिब तक़वा है, जिन्हें रब तबारक तआला का खौफ है, जो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, जो राह सुलूक को अख्तियार करते हैं, जो रब्बे कायनात की तलाश में रहते हैं, जो मार्फत खुदाबंदी की तलाश में रहते हैं, जो अल्लाह के रसूल की रज़ादोई से चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था हमें करनी है शहंशाह वतहा की रज़ादोई, हमें करनी है शहंशाह वतहा की रज़ादोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर रब की रहमत को अपने करीब करना चाहते हो, खुदावंद कुदूस के करीब होना चाहते हो, तो दोस्तों ये दुनियावी ताल्लुकात, मैं ये नहीं कहता कि दोस्तियों को खत्म कर दो, जमात को खत्म कर दो। दोस्तों बहुत से फवाइद होते हैं, मैं महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं कहता कि दोस्तों मेरे इस बात की बुनियाद पर आप सबसे ताल्लुकात को खत्म कर लो, नहीं, दोस्ती करो मगर अल्लाह के लिए दोस्ती करो, दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए करो। अगर किसी से नफरत करते हो तो इसलिए नफरत करो कि दोस्तों वो खुदा का मुनकिर है, खुदा का बागी है, तो फिर उससे नफरत करो। इस बुनियाद पर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ इंसानी बुनियाद पर नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर नफरत करनी है किसी से तो अल्लाह के लिए नफरत करो कि अल्लाह का बागी है, ये अल्लाह का मुनकिर है, ये राह रास्ते पे नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अल-अखिल्लाहु यौमइज़िन, गहरे दोस्त उस रोज आपस में दुश्मन होंगे, वजूद मुत्तकी के, वजूद परहेजगार के, सिवाय परहेजगारों के। इसलिए मैं तुम्हें ये जल्द में अपने गुफ्तगू को दराज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक बात करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा बारगाह खुदा में अर्ज़ किया और उसके बाद वो अपने मामलात को तय करते रहे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ए मूसा तुम मेरे लिए क्या लाए हो? हज़रत मूसा से कहा गया, ए मूसा तुम मेरे लिए क्या लाए हो? हज़रत मूसा ने कहा, मौला नमाजें तेरे लिए पढ़ी है, रोजे तेरे लिए रखे हैं, माल और मता तेरे लिए सर्व किया है, सारी तबलीग तेरे लिए किए हैं, ये जद्दोजहद सब कुछ तेरे लिए किया है, सदकात तेरे लिए किए हैं, खैरात तेरे लिए किए हैं। अल्लाह तबारक तआला कहेगा नहीं, ये नमाज तो तुमने अपने लिए की है, ज़कात तुमने अपने लिए दी है, और अरकान तुमने अपने लिए अदा किए हैं, सदकात और खैरात तुमने अपने लिए किए हैं। नमाज तुमने इसलिए पढ़ी कि तुम्हें हम जन्नत अता करें, और सदकात और खैरात तुमने इसलिए दिए ताकि तुम्हारी बलाओं तुमसे दूर हो जाए, तुम्हारी तकलीफें तुमसे दूर हो जाए। अगर तुमने कोई काम किया है तो अपने लिए किया है, बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया है? दोस्तों बड़ी हसीन सी बात है, हाँ यही तो पूछना चाहता हूँ, हमने अपने रब के लिए क्या किया है? हज़रत मूसा से सवाल है। हज़रत मूसा को जब बात समझ में नहीं आई तो बारगाह इलाही में अर्ज़ कर दिया, मौला तू ही बेहतर जानता है, बता वो कौन सी चीज़ है जो तेरे लिए है, जो मेरे लिए नहीं तेरे लिए है। रब्बे कायनात ने फरमाया, ये मूसा बताओ क्या तूने किसी से मेरे लिए मोहब्बत की है? तूने मेरे लिए किसी से मोहब्बत की है? तूने मेरे लिए किसी से दोस्ती की है? तूने मेरे लिए किसी से
ताल्लुकात को निभाए हैं। तो दोस्तों ये दोस्ती अगर तुम अल्लाह के लिए करोगे तो हम नमाज़ें पढ़ते जरूर हैं, हम ज़कात जरूर देते हैं, सदका जरूर करते हैं, खैरात जरूर करते हैं, मगर अपनी जाती मकान के लिए करते हैं। ये चीज हमारे लिए कल सहारा होगी। मगर दोस्तों इखलास वाली जो चीज है ना वो ये है कि किसी के साथ दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए दोस्ती करो, खालिसन लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के लिए। जब खालिस दोस्ती होगी, इसीलिए तो दोस्तों ये तमाम सब चीजें जो भी आप किसी के साथ ताल्लुकात रखो कोई हर्ज नहीं, मगर उस दोस्ती के पसे पुष्ट आप ये रखो कि हम अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं, हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए। इसलिए कि हम एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो ये भी हमारे लिए बड़ा सबब बनेगा कि दोस्तों हम लोगों से दूर होते चले जाएंगे तो हम उनको दिन के करीब कैसे करेंगे, हम उन्हें मजहब के करीब कैसे करेंगे, हम उन्हें अपने मसलक के करीब कैसे करेंगे, हम उसे अपने मशरब के करीब कैसे करेंगे। तो दोस्ती का ताल्लुक ये रखो, हम किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती हमारी नफरत कुफ्र से है, काफिर से नहीं। हम अगर बुग़्ज़ रखते हैं, अगर हम नफरत रखते हैं किसी काफिर से तो ऐसा नहीं कि हम काफिर से रखते हैं बल्कि उसके कुफ्र से रखते हैं। अगर हम किसी मुशरिक को बुरा समझते हैं तो इस बुनियाद पर नहीं कि वो मुशरिक है बल्कि हम उसके शिर्क से नफरत करते हैं। हमें अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को गहरी निगाहों से देखता है, गलत निगाहों से देखता है तो इसका मकसद ये नहीं कि वो मरीज का दुश्मन है बल्कि वो तो मर्ज का दुश्मन है, उससे मर्ज को खत्म करना चाहता है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को दराज नहीं करूंगा। आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस में दोस्ती जरूर करो, ताल्लुकात जरूर निभाओ, एक दूसरे के साथ चलो और ऐसी दोस्ती से इज्तनाब करो जो तुम्हें खुदा से दूर कर दे, ऐसी दोस्ती को अख्तियार करो जो तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब ले जाए, जो तुम्हें जन्नत का हकदार बना दे। जब तुम इन बातों को मलहूज़ खातिर रखोगे तो दोस्तों ये दुनिया में तुम्हारे लिए कामयाब और कामयाबी का सबब बनेगा और यहाँ भी तुम सुरखरू हो जाओगे तो क़यामत में भी रब तबारक तआला तुम्हें सुरखरू अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, अल्लाह हदीस पाक में भी है कि जिस रोज कोई साया ना होगा उस रोज अल्लाह तबारक तआला का साया होगा। अगर उस रोज इंसान उस साये को चाहता है कि जिस रोज किसी का साया ना होगा, लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, दोस्तों हर इंसान परेशान होगा। अगर उस वक्त में किसी को रब कायनात के साये की जरूरत है तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मुझे मेरे रब होने की कसम है, मुझे रब्बे जुल जलाल अपना रब होकर वो कसम खा रहा है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, जिस दिन कोई साया ना होगा उस दिन मैं तुम्हारे लिए साया बन जाऊंगा। अगर तुमने किसी से मेरे लिए दोस्ती की है, अगर तुमने मेरे लिए किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं तो दोस्तों हमारे और आपके ताल्लुकात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होने चाहिए, किसी जमात के लिए नहीं, किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं, किसी दुनियावी मकासद के नहीं। अगर इस इत्तेहाद में अगर हमें दुनियावी फायदा हो जाता है तो फबीहा, वरना हमारे और आपके ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा जो हम दे रहे हैं कि जहाँ चीज़ के आलम गलत है तो आप